So hello everyone, this is Purnamashri and welcome back to Specs Academy. So today we will do the revision of the previous lectures. Previous lectures में जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में आज मैं रिवीजन करूँगी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट the difference between the prokaryotic organisms and eukaryotic organisms, and we have read about the animal cell and plant cell. Animal cell और plant cell के बीच में difference क्या है ये हमने पढ़ा था. Then हमने पढ़ा था cell theory के बारे में सब basic, okay. Then और हमने पढ़ा था क्या, हाँ हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है, एंड बट इसके बाद हम पढ़ेंगे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़े थे, तो मैं कल से आपको यूकैरियोटिक सेल, ओके, वी विल गो डीप इनटू द यूकैरियोटिक सेल, ओके. तो टुडे आई विल डू द रिविजन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, ओके. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़े थे. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके. This prokaryotic cells, it has cell envelope. We have studied about the cell envelope and the prokaryotic cells. Prokaryotic cells के cell envelope कैसे होते हैं उसके बारे में हमने पढ़े थे, okay. The cell envelope and of the prokaryotic cells. Cell envelope, okay. So in the cell envelope there are three layers present in the cell envelope. First one is the glycocalyx, second one is the cell wall, and third one is the plasma membrane or biological membrane. We can say that the third one is the, we can say that this, the plasma membrane is also known as biological membrane and it is also known as cell membrane, okay. So the first one was the glycocalyx. First one was the glycocalyx, okay. Then the second one was the cell wall. And the third one was the plasma membrane. Okay, the plasma membrane we can say that it is the biological membrane or it is the cell membrane. Okay. So ये glycocalyx क्या है? Glycocalyx it is the outermost layer of the cell envelope. पूरा बाहरी layer जो बाहर में पूरा present होता है उसे हम glycocalyx कहते हैं, ठीक है. It is the outermost layer of the cell envelope. Okay. This is the outermost layer. Okay, glycocalyx is the outermost layer of the cell envelope, okay. So in some bacteria the glycocalyx is has smooth sheath like structure. जैसे पतला smooth जैसा structure होता है उससे कुछ बैक्टीरिया में और कुछ बैक्टीरिया में उनका glycocalyx they have thick and tough glycocalyx, and that thick and tough glycocalyx is known as capsule, and the smooth sheath, the glycocalyx is known as slime layer, okay, or you can say slim layer, okay. So the first one is, दो टाइप का होता है. कुछ बैक्टीरिया में उसका हम कहते हैं स्मूथ शीथ जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, ओके, स्लाइम लेयर, और यू कैन से इट इज द स्लिम लेयर. एंड द सेकेंड वन इज द कैप्सूल. कैप्सूल is the thick and tough, okay, thick and tough glycocalyx, okay. So then उसके बाद हम आएंगे सेल वॉल. तो बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर रीडिंग दैट अबाउट द सेल वॉल. हम बचपन से पढ़ते आ रहे कि सेल वॉल इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. सेल का शेप को मेंटेन करने के लिए हमारा सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? सेल वॉल, ओके. इट प्रोवाइड्स structural support to the cell, provide structural support to the cell. ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. कहीं से कहीं बस्ट ना कर जाए कि कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है. देन हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, okay. Plasma membrane is a semi permeable or we can say that it is selectively permeable in nature. कैसे ये सेमी परमेबल सिलेक्टिवली परमेबल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप मान लो, हाँ, सेमी परमेबल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाला हमारा जो
ये अपने अंदर किसी भी चीज़ को ऐसे एरे गरे नत्थो खेरे इसके अंदर में वो आने नहीं देता है। वो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को ही उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर वो अंदर आने देता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, इसलिए इसे सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल कहा गया है। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये आप हो कि ये मैं हूँ, दिस इज मी, और अगर हम बायोलॉजी में देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। देन ये वाला एक घर है, दिस इज अ हाउस, ओके, एंड इसको हम बोल देंगे क्या, हाउस, और इन बायोलॉजी वी विल से दिस इज द सेल। ओके, तो ये मैं हूँ और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द हाउस और दिस इज द सेल इन बायोलॉजी। मैं मेरे घर पे हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि मेरा ये एक पर्टिकुलर इंसान ये मेरे घर में ना आए। मुझे उसे अच्छा नहीं लगता है, कि मुझे लगता है कि वो अगर मेरे घर में आएगा तो मेरा घर डैमेज हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी लगता है कि अगर वो ऐसे किसी को भी आने देता है, अनवांटेड माइक्रोमोलिक्यूल्स के अनवांटेड सब्सटेंसेस जो भी आएंगे तो उसको सेल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, और सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिव लोगों को ही उसके अंदर आने देता है, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसे जिसको भी अंदर घुसा लेगा नहीं तो उनका क्या सेल वॉल डैमेज हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसलिए therefore the plasma membrane is semi permeable और सिलेक्टिव इन नेचर, सिलेक्टिवली परमेबल, वो सिलेक्टिव लोगों को ही अपने अंदर आने देता है, ठीक है। दैट इज वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ओके। एंड इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, ठीक है। इसके पास जो ऑर्गेनल्स है, जो भी है इसके पास, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ओके।